Hi, this is the chapter number 6. So the chapter number 6 is trading mechanism. So इस चैप्टर में हम ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है पहला टॉपिक है. सेकंड टॉपिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग. थर्ड टॉपिक है सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग. फोर्थ टॉपिक है एडजस्टमेंट फॉर कारपोरेट एक्शंस. कारपोरेट एक्शंस इज अ बिग सब्जेक्ट, इवन बिग पॉइंट, बट आपको ये रिसर्च एनालिस्ट अगर आपको करना है तो वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना. यहाँ एक बेसिक है. फिफ्थ टॉपिक है ट्रेडिंग कॉस्ट. सिक्स्थ है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. मींस एल्गोरिथम पे काम करना. कोई सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बना रखा है, सो वो खुद ही पोजीशन देते हैं, खुद बाय करते हैं, खुद एग्जिट करते हैं. वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग दैट इज कॉल्ड. ट्रैकिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डाटा. सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डाटा को कैसे ट्रैक करते हैं. सो अभी हम चलते हैं सीधे चैप्टर पे, देखते हैं कि चैप्टर पे हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक, सो अभी ये है चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. या सो आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ट्रेडिंग मैकेनिज्म फॉर फ्यूचर्स ऑप्शंस है. इंटाइटीज इन्वॉल्व इन द trading of futures and options, different type of orders and order matching rules, selection criteria of stocks and index for future and option trading, adjustment for corporate actions, trading cost, algorithmic trading, and tracking of future and option data, which already I have read it. Now, so abhi in this chapter what we are going to learn, this is a summary that what we are going to learn here. देयर इज टू टाइप ऑफ मार्केट क्लासिफाइड. आप जानते हो दो टाइप की मार्केट काम करती है. एक ओपन आउटक्राई पे काम करती है, एक इलेक्ट्रॉनिक पे काम करती है. ठीक है, बेसिक है मार्केट कैसे काम करती है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म. सो इफ यू वांट यू कैन रीड आल्सो दिस. if you read this one then you can understand easily, but if you not going to read, I'll read it. So from here, this in this chapter we are we shall take a brief look at the trading mechanism of future and option on exchange, including various type of orders. However, the best way to develop an understanding of the trading mechanism is to watch the screen and observe trading. You will have to watch the candle, not 6 hour, but yes, at least 4 hour, 4 hour 30 minutes you have to watch. Morning candle must watch. You have to watch morning candle. आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो दे विल टेल यू हाउ टू वॉच. वो ट्रेनिंग कराएंगे आपका इफ यू आर फ्रेशर. As stated earlier, future and options are standardized contract and like shares. They are traded on exchanges, not other. Okay, market around the world can be classified into two types, which I already told. Open outcry and electronic. So open outcry is the way to communicate between professionals on an exchange, which involves shouting or using hand signal to transfer information about buy and sell order. In an open outcry market, the trading takes place in a large hall known as pit, where members are present and contract are traded through continuous bid and offer. ये पहले जैसे बॉम्बे में 1992 के पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होता था, ये वो वाला मेथड है. अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया. तो वी आर गोइंग टू लर्न इलेक्ट्रॉनिक्स. आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, ओपन आउटक्राई होता क्या. ठीक. Then all the derivative exchange in India provide a fully automated screen based trading platform for index future, index options, stock future, stock options. Okay, these tradings system support an order driven market and simultaneously provide continued transparency for trading operation. Derivative trading is similar to that of trading of equities in the cash market segment. So ये चीजें आपको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएंगी. बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट यस यू हैव टू लर्न. एंटिटीज इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन. तो कौन कौन से एंटिटीज इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ये देख लेते हैं, क्योंकि ये वैलिड पॉइंट है और इसमें आपको थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा कि आपको क्या, आपने क्या क्या सीखा है. ठीक है,
सो फर्स्ट ट्रेडिंग मेंबर, ये आपको पढ़ना भी है, आपको ये काम भी आएगा जॉब करते समय। दे आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दे कैन ट्रेड आइदर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट और ऑन देयर ओन अकाउंट। आप जब काम करोगे इक्विटी एंड डेरिवेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑफलाइन में, देन यू विल हैव टू डू दैट वन बिकॉज यू विल हैव टू जनरेट रेवेन्यू। द एक्सचेंज असाइन अ ट्रेडिंग मेंबर आईडी टू each of its trading member, like those who have NISM series 8 qualified, they have a particular terminal number, that is a trading member, that is terminal number. A trading member can have more than one user. ट्रेडिंग मेंबर के पास कई यूजर्स हो सकते हैं। या द नंबर ऑफ यूजर allows for each trading member is decided by the exchange from time to time. A user must be registered with the exchange where he is assigned a unique user ID. So सभी ब्रोकर का ट्रेडिंग मेंबर, सब ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, उनका सबका असाइंड होता है वहाँ पे। ओके, थर्ड है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। क्लियरिंग कारपोरेशन आपने सुना होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट देते हैं, तो दिस इज द क्लियरिंग मेंबर, CM बोलते हैं, हु इज आल्सो अ ट्रेडिंग मेंबर of the exchange. Such clearing members may clear and settle their own proprietary trade, their clients trade as well as trades of other trading members and custodial participant. Third है professional clearing member. Professional clearing member clears the trades of his associate trading members and institutional equities. ये बड़े क्लाइंट होते हैं। अब PCM प्रोफेशनल क्लाइंट मेंबर इज नॉट अ trading member of the exchange. Typically banks are custodian like बैंक जैसे ICICI बैंक सिक्योरिटीज है, HDFC बैंक सिक्योरिटीज है, HDFC सिक्योरिटीज है, एक्सिस सिक्योरिटीज है, बंधन है, कोटक है। सो ये सब एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर भी होते हैं। टिपिकली बैंक आर कस्टोडियन बिकम अ PCM and clear and settle for trading members as well as for custodial participant. Self-clearing member. A self-clearing member is also a trading member on the exchange, such as clearing members. Such clearing members may clear and settle only their own proprietary trades and their client's trade, but cannot clear and settle trade of the other trading members. जैसे कोई मोतीलाल ओसवाल का क्लाइंट है, तो उस क्लाइंट को जो ट्रेडिंग एंड सेटल्ड होगा वो ग्रो या जीरोधा या ये सब लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो सेल्फ क्लीयरिंग मेंबर होंगे। हम अभी मैं ये एग्जांपल लिया हूँ केवल सेल्फ क्लीयरिंग मेंबर का डाउट सॉल्व करने के लिए, ना कि हम ये बोल रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल सेल्फ क्लीयरिंग मेंबर है। पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट इज अ क्लाइंट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर। जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो बेसिकली क्लाइंट, जैसे हम क्लाइंट होते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स के। Client may trade through various trading members but settle through a single clearing members. Yes. Authorized person, SEBI has earlier allowed spread of brokership as well as authorized persons network to expand the broker networks. ये SEBI डिसाइड करती है कौन सा authorized person होगा। SEBI has a particular rules also about that. Market timing of derivative segment. So 9:15 to 3:30 is a time, but 9:08 इज प्री मार्केट ओपनिंग। सो मार्केट 9:08 पे ही ओपन हो जाता है। सो यहाँ पे टाइम दिया इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट 9 AM to 11:55 PM। ओके, ये 9 AM to 55 PM द परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इतने बजे तक चल सकता है, लेकिन अभी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, ये चल रहा है 9:15 to 3:30। कमोडिटी मार्केट 11:30 तक चलता है। कारपोरेट हायरार्की, कारपोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, डीलर। This is the corporate like kind of, you are going to work as a dealership and then branch manager after 3 to 4 year of experience, and then you are going to corporate manager as a 6 to 8 year of experience. ये बेसिक है, इसको पढ़ लेना एक बार। क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप में ट्रेडिंग मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग नो योर कस्टमर्स फॉर्म, एग्जीक्यूशन ऑफ क्लाइंट ब्रोकर। लाइक इफ आई एम गोइंग टू ओपन माई अकाउंट टू एनी अदर ब्रोकर फर्म, तो दे हैव टू वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट, नॉट गोइंग टू, इफ अगर कोई ऐसा बंदा है जो इलीगल है, उसका डीमेट अकाउंट खोल दो और अनप्रोफेशनली ट्रेड हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऑर्डर टाइप एंड कंडीशंस। सो ऑर्डर टाइप यहाँ पे पढ़ सकते हो, टाइम कंडीशंस, प्राइस कंडीशंस, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव आर अलाउड, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द अदर्स। ठीक, टाइम कंडीशंस, आपको टाइम पता, टाइम कंडीशन, डे ट्रेडर, अ डे ट्रेडर लाइक इंट्राडे, अ डे ट्रेडर इज एन ऑर्डर व्हिच इज वैलिड फॉर अ सिंगल डे on which it is entered. If the order is not executed during the day, the trading system cancel the order automatically at the end of the, like आपने कोई इंट्राडे में पोजीशन लिया है,
मॉर्निंग में, और आपने कोई मान लेते हैं कोई शेयर ले लिया, ABC कंपनी का शेयर ले लिया और आपने डिलीवरी चूज नहीं किया, इंट्राडे चूज कर लिया, सो आप कितने बचाए, आप 329 पे लियो, 329 पे लियो, वो 330 पे अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा पोजीशन, इफ यू हैव चूजन इंट्राडे। अगर आपने 930 पे भी लिया है और 330 तक आप 330 से पहले आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, उसको आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो, देन इट विल गोइंग टू एग्जीक्यूट, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। इमीडिएट कैंसिल, immediate or cancel order. A user is allowed to buy or sell a contract as soon as this order is released in the trading system. An unmatched order will be immediate cancelled. अगर आपने कोई ऑर्डर रिलीज हुआ है और वो अनमैच्ड है तो वो कैंसिल हो जाता है। partial order match is possible in this order and the unmatched portion of the order is cancelled immediately. Like आपने, मैं एक ले लेता हूँ कोई, जैसे ABC कंपनी, XYZ कंपनी का शेयर है, मैंने 100 रुपये डाल रखा है, वो 100 रुपये पे ओपन नहीं हुआ, तो दैट इज इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर, वो ऑर्डर इन मैच नहीं हुआ ना। प्राइस कंडीशन हो गया, लिमिट ऑर्डर पे आप ले रहे हो, जैसे मैंने अभी ABC का लिया कि मैंने लिमिट ऑर्डर 100 रुपये डाला है, 100 रुपये जाएगा तभी वो बाय होगा। मार्केट ऑर्डर हो गया, दैट इज करंट मार्केट प्राइस, अभी अगर मार्केट उसका 99 रुपये चला तो मार्केट बाय होगा। मार्केट ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ कॉन्ट्रैक्ट एट द बेस्ट बिड ऑफर प्राइस करेंटली अवेलेबल इन द मार्केट, जो करेंटली चल रहा है मार्केट में वो। स्टॉप लॉस ऑर्डर, a stop loss is an order to buy or sell a security which once the price at the security climb above. आपने कोई बेसिकली लिमिट लगा दिया कि इतने पे बाय करना है, इतने पे सेल करना है, ठीक। ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप एग्जांपल एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ABC कंपनी, ABC लिमिटेड का लिया गया है एग्जांपल्स, ठीक। ऑर्डर मैचिंग रूल्स इन इंडिया, FNO प्लेटफॉर्म ऑफर एन ऑर्डर ड्राइवन मार्केट which wherein orders match automatically on price time priority basis. So order as and when they are received be first time stamped and then immediately proceed for potential match, ठीक। बेस्ट प्राइस विद इन प्राइस, पहले ही उसमें यहाँ पे बोला हुआ है मैंने ऊपर। फिर प्राइस बैंड क्या होता है, आप प्राइस बैंड लगा के चलते हो फॉर इंडेक्स फ्यूचर एट 10% ऑफ बेस प्राइस। So there is no price band applicable in derivative segment. However, in order to prevent erroneous order entry, opening range, operating range and day minimum maximum range are kept as below. So for index future 10% of the base price, future and individual securities 10% base price, and index and stock options a contract specific price range based on its delta values computed and updated daily. ये हो गया ट्रेडेड वर्क स्टेशन हो गया। सो टाइटल बार, द फॉलोइंग विंडो आर डिस्प्लेड ऑन द ट्रेडर वर्क स्टेशन। तो ये बेसिकली ना आपको टर्मिनल का क्या होगा, टाइटल बार देखिएगा टर्मिनल की पूरी हुआ। ट्रिकर विंडो फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट, ट्रिकर विंडो फॉर अंडरलाइन कैपिटल मार्केट, टूल बार होगा, मार्केट वॉच विंडो होगा, इंक्वायरी विंडो होगी। फिर ये सारे जो सिस्टम मैसेज है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे आपके एक विंडो पे रहेगा, जैसे लैपटॉप का विंडो है। प्लेसिंग ऑर्डर ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम्स, ये बेसिकली करना पड़ेगा। While entering order on the trading system for both the future and option market, trading member are required to identify order and being proprietary client. Identify proprietary client while CLI. Okay, identify client order. Client account number should be provided for client orders only. Okay. Future and option market instrument. So आप भी जानते हैं इंडेक्स बेस्ड, फ्यूचर इंडेक्स बेस्ड, ऑप्शंस, इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस एंड इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स। वो इंडेक्स का भी है, स्टॉक्स का है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ये भी आप पढ़िएगा कि आप डेरिवेटिव ट्रेड करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का स्टॉक मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज दिस मच ओवर द लास्ट 6 मंथ, दिस रूलिंग बेसिस शैल नॉट बी लेस देन 75 लाख। सो ये है इसका एलिजिबिलिटी। फिर है एक्स नाम बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क for stock derivatives. Then again you are going to selection criteria for index for trading, eligibility criteria for indices. Indices के लिए क्या criteria है, और ये यहाँ पे जो था वो eligibility criteria for selection of stocks for derivative trading, और here is index trading। ये सब बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा, इंडेक्स ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग। एडजस्टमेंट फॉर कारपोरेट एक्शन, ये हो गया 4 पॉइंट। कारपोरेट एक्शन में क्या होता है, प्राइस स्ट्राइक प्राइस, पोजीशन, मार्केट लॉट, मल्टीप्लायर, ठीक है। उसके बाद आप कारपोरेट एक्शन में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ये आप बेटर वे में पढ़ते हैं जब आप आरे जब बनते हैं। लेकिन हाँ, इफ़ यू हैव क्लाइंट, द क्लाइंट हैव क्वेरी ऑलरेडी, बिकॉज इफ यू आर ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्केट देन सम कंपनीज आर गिविंग बोनस, सम इशूइंग राइट्स, सम मर्जर एंड डीमर्जर विल हैपन, सम अमेलगमेशन, सम स्प्लिट
happening, some consolidation, IBAF, warrant, these things not as much, but these things are happening. Extraordinary dividends also, you have to know about the bonus stock split. This is the, ये पढ़ लेना, ये पूछ भी सकता है, पूछ भी सकता नहीं, पूछेगा, क्योंकि बोनस और राइट्स में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, बोनस और डिविडेंड्स में, राइट्स में, इसमें ये पूरा एग्जांपल वाइज है, इसको यू हैव टू रीड दिस वन. And then merger also, merger and demerger. What is merger and demerger? Trading cost. So a participant in the equity derivative market incur different trading costs which can be broadly classified into user charge, statutory charge and impact cost. So क्या क्या charges होता है ये पता होना चाहिए आपको. User charge है, statutory charge है, ठीक. Brokerage is the commission charged by the broker who place the order for their client. Brokerage usually lower for intraday trader. Intraday में कम होता है. रेट्स ऑफ ब्रोकरेज डिफर वाइडली अकॉर्डिंग टू द एडिशनल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ब्रोकर, जस्ट एज ब्रोकर चार्ज ब्रोकरेज फॉर देयर क्लाइंट. द स्टॉक एक्सचेंज आल्सो कलेक्ट ट्रांजैक्शन चार्जेस फ्रॉम ब्रोकर्स हु आर द मेंबर ऑफ एक्सचेंज. सो क्या होता है, कंपनी अगर मान लेते हैं कि किसी ABC कंपनी है, वो ब्रोकिंग फर्म है, अगर वो आपसे कोई चार्ज ले रही है तो वो कंपनी कहीं ना कहीं किसी एक्सचेंज में लिस्टेड है तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लेता है. दैट इज कॉल्ड या डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट आल्सो, दैट इज चार्ज, वो सब पड़ता है. स्टेचुरी चार्ज जो गवर्नमेंट के होते हैं, STT हो गया, GST हो गया, बहुत सारे ड्यूटी जो ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्जेज होता है. ये एक बेसिकली रेट दिया हुआ टैक्सेबल सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, सेल आना, ऑप्शंस इन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्जेज यहाँ पे पढ़ लेना. IPFT चार्जेज है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट, कई बार होता है, ये भी जाता है आपका NSE इक्विटी एंड फ्यूचर्स. सो 10 रुपये पर करोड़ ये दिया हुआ है GST का रेट. बिड आस्क स्प्रेड एंड मिड इम्पैक्ट कास्ट, ये वाला एक बार समझ लेना आप, ठीक है. क्वांटिटी में कास्ट ऑफ ट्रेडिंग, कास्ट ऑफ ट्रेडिंग में क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर इतना है तो ब्रोकरेज 3% जा रहा है. अगर आपने इतने का ट्रेड किया है, ये बेसिकली इसका एग्जांपल, तो इतने का ट्रेड किया है आपने, अगर ब्रोकरेज 0.03% 262 रुपीज़ है, STT है, एक्सचेंज फीस है, एक्सचेंज फीस ब्रोकर देगा, जो ब्रोकर देगा एक्सचेंज को. सेबी चार्जेज है 10 रुपीज़ पर CR पे. उसके बाद IPFT चार्जेज है, एंड देन GST 18%. GST चार्जेज तो आपके होल अमाउंट पे नहीं है, GST चार्जेज योर ब्रोकरेज, योर STT ऑल दिस उसमें है. एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ये भी पढ़ लेना कि अभी ये बहुत ट्रेंड में आ चुका है. सो ये थ्योरी है बेसिकली, बट ये आपसे पूछ सकते हैं वहाँ पे. ट्रैकिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन डाटा, superior to the surge in the popularity of internet trading, daily newspapers were chief source of information regarding स्पॉट एंड डेरिवेटिव प्राइस. सो न्यूज़पेपर्स होते हैं, लेकिन अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं. डेट द गिव्स द ट्रेड डेट, गिव्स अंडरलाइंग इंडेक्स, कौन किस में बाय करना है, ये सब बेसिकली ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन डाटा है. आपको डाटा कलेक्ट करना होता है, तो अभी तो बहुत ईजी है, ठीक. ऑप्शन टाइप्स क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, लोअर प्राइस, हायर प्राइस, ओपन प्राइस, एंड देन कॉर्पोरेट एक्शन लेवल्स, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू नो. मैंने पहले ही बोला था, पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में है, ओपनिंग प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है. बाकी इसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन है, देन विल मेक अनदर वीडियो ऑन सेंसिबल. टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है, टोटल ट्रेडेड वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं, आपके कितने ट्रेड आपने लगाया हुआ है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, OI. ओपन इंटरेस्ट ये होता है कि पर्टिकुलर पोजीशन में कितने लोग अभी पोजीशन लिए हुए हैं, ठीक है. दैट इज कॉल्ड OI. OI का एक इंपॉर्टेंट होता है, आप कई बार OI को देखते हो कि कितने पोजीशन चल रहा है बाय एंड सेल के लिए, ठीक. उसका फ्रेमवर्क एड्रेस, तो ये हो गया आपका जो प्लेटफॉर्म है. इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस. So investor risk reduction access platform is designed to protect investors from technical glitch and unforeseen outage that can make a trading member's site inaccessible. It's intended to provide an alternative when both the primary trading platform and the disaster recovery sites are experiencing challenges. Okay, ये भी पढ़ लेना, ये बेसिकली थ्योरी है. यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, बट अभी तो हमें नहीं लगता पूछेंगे यहाँ से. देन वी आर कमिंग इन सैम्पल क्वेश्चंस एंड विल मेक दिस क्वेश्चंस ऑन PPT also. Then you can, if want, you can watch here, but here is only 2 questions. That is one of the derivative exchange. All the orders entered on the trading system are at price exclusive of brokerage. बिल्कुल absolutely इंक्लूड नहीं होता है ब्रोकरेज किसी भी उसमें. आपका जो ब्रोकरेज जाएगा वो अलग से जाएगा, जो ट्रेडिंग सिस्टम में जाएगी वो आपका पैसा अलग से जाएगा, प्रीमियम आप जो दे रहे हो.
सेकेंड है अ ट्रेडर हैज ब्रॉट 100 शेयर्स ऑफ XY at the price of 780 rupees per shares. 100 shares, this is company 780 rupees per shares, then it's going how much? It's going to 78,000 rupees. He expect the price to go up but want to protect himself. ये हेजिंग के लिए बात कर रहा है. If the price fall, अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो ये अपने को बचाना भी चाहते हैं. ही डज नॉट वांट टू लूज मोर देन 1000 रुपीज़. 1000 रुपीज़ से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहते हैं. ठीक है. ऑन दिस लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग मीन्स बाय किया इन्होंने, मार्केट ऊपर जाएगा. इन XY, ऑन दिस लॉन्ग पोजीशन इन XY. ओके, व्हाट शुड द ट्रेडर डू? सो अभी देखिए क्या है, ये केवल 1000 से ज़्यादा रुपया लॉस नहीं करना चाहते हैं. सो अब आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कि अगर 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहते हैं तो 78,000 है अगर, तो 78,000 को अगर ये कितना रुपया गिरेगा तो 78,000 पे इन्होंने बाई किया, कितना रुपया गिरेगा तो ये 8,000 का लॉस हो जाएगा. यानी कि 10 रुपीज़ अगर ये गिरेगा तो 1,000 का इनका लॉस हो जाएगा क्योंकि 100 शेयर्स है. ओके, हियर इज 100 शेयर्स, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया कितना 1000 रुपीज़. तो 1000 रुपीज़ ये लॉस नहीं करना चाहते हैं. प्राइस 780 है. सो अब क्या करेंगे, पहले प्लेस अ स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर फॉर 100 क्वांटिटी वाट एवर दे हैव टेकन ऑफ XYZ कंपनी एट द रुपीज ऑफ 770. स्टॉप लॉस मीन्स इससे जैसे 770 मार्केट टच करेगा इट विल नॉट गो, आपका पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा. ठीक, तो आपको इनको अगर 1000 रुपये बचाना है, अपना 1000 लॉस करना है, then they can sell 770. अब प्लेस अ लिमिट सेल ऑर्डर. अब लिमिट सेल ऑर्डर नहीं होता है, लिमिट बाय ऑर्डर होता है. लिमिट बाय ऑर्डर, ओके, 90 पे क्यों बाय करोगे, अगर 1000 लॉस करना है तो प्रॉफिट में चला गया आपका. प्लेस अ लिमिट बाय ऑर्डर, फिर बाय क्यों करना है 70 पे आएगा, हम फिर और बाय कर लेंगे. सो दिस इज द होल 6 चैप्टर नंबर 6. फर्दर विल मेक अनदर वीडियो फॉर द फर्दर चैप्टर्स. बट अगर आप को अच्छा लग रहा है देन यू कैन लाइक चैनल, सब्सक्राइब आल्सो. एंड श्योर मैं आपको कंटेंट अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को करना क्या है, आपको आप पहले जो वर्क बुक है उसको पढ़िए. उसको पढ़ने के बाद भी आप समझ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करने से भी आपको समझ में नहीं आएगा. इसलिए मैं एज ए की पॉइंट मान के बेसिक टॉपिक्स लेता हूँ. ठीक, या ओके, थैंक यू, बाय बाय.